Assalamualaikum students. We will continue our chapter acid, bases and salt. And in this we have to do reaction of acid and base with metal, non-metals, dissolve. Let's see. We have learned about what is the acid, what is the base, what is the strong acid, what is the strong base, and what is the salt. Now let's see how they react with each other. Reaction of acid with the base metal. Sorry, the reaction of acid with metal is determined by the strength, concentration of acid, reactivity of metal, and temperature. What are the different conditions that these reactions will depend? Strength of what? Acid. As I said you, whether it's a strong acid, whether it's a weak acid, so that is matter. And then concentration of the acid, dilute acid है कि concentrated acid है, so that is also even matter over here. There is reactivity of the metal. How much metal is reactive? How much metal is reactive? Some metals are very reactive, some metals are least reactive. So according to reaction, according to their activity, the metals are reactive with the acid. So example, less reactive metal like copper, gold, silver, they will not react with the acid. Whereas the metal like sodium, potassium, they will react with the water. And as well as temperature, they need specific temperature. They need a specific temperature for their reaction also. These all things again you will cover in 10th standard. We need not to have to go in much detail, but for these all things the reaction depend. 10th standard में हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, and if I get it तो I will explain you something more about it. तो रिएक्टिविटी सीरीज आता है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट मैं इंशाल्लाह दे दूंगा. आपको याद करने पड़ेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है. ये हमारा चैप्टर एसिड बेस है, तो अभी हम लोग उसके बारे में देखते नहीं तो क्या होगा कि सब खिचड़ी बन जाएगा, मैशअप हो जाएगा, तो इसलिए बाद में देखते हैं इंशाल्लाह. नाउ सी हियर वी आर टेकिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एसिड. डाइल्यूट भी है, स्ट्रांग एसिड है, मतलब जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो वो एसिड ही स्ट्रांग एसिड, बट वी हैव डाइल्यूटेड इट, मतलब उसमें वाटर का परसेंटेज, सॉल्वेंट परसेंटेज इज मोर ओके देन सॉल्यूट. तो रिएक्शन देखें तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टेकन द टेस्ट ट्यूब, एंड इन द टेस्ट ट्यूब वी आर एडेड ये और क्या है सबका से गैस ट्यूब. ओके, गैस को हॉल्ड करने के लिए वी विल फिक्स ओवर हियर, ताकि गैस से जो निकलेगा इवेपोरेट होगा, विल कम आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट विल स्टॉप बाय दिस रबर ट्यूब. Then we have magnesium ribbon. क्या किया मैंने magnesium ribbon में डाला, magnesium के स्मॉल पीसेस डाले. Then we have added HCl over here, dilute HCl मैंने डाला. जब dilute HCl डाला मैंने, है ना, और magnesium ribbon पानी डाल के रखे थे, तो रिएक्शन हुआ. जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, इसमें गैसेस आ रहे थे, और गैसेस क्या हो रहा था कि जब मैं कैंडल लेके आया तो कैंडल क्या हुआ और बर्न होना स्टार्ट किया विद द साउंड. ओके, पॉप अप साउंड के साथ वो क्या है और गैस का बर्न होना स्टार्ट हो गया, मतलब हेल्प हो रहा है कैंडल को बर्निंग करने में. प्लस साउंड इज आल्सो कमिंग. तो फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग, मींस फ्रॉम व्हिच एसिड इट इज लिबरेटिंग. तो रिएक्शन देखते हैं इसमें. रिएक्शन इज कि जब भी मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद HCl, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद HCl, इट इज गिविंग see एक हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटिंग, हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट. दिस इज द रिएक्शन. whenever metal react with dilute acid, salt plus water will form. Always remember this, you have to memorize. This is the format you have to memorize. There is no chance, okay, you to skip it. These all things है ना. ये क्या फॉर्मेट, एक बार आ गया फॉर्मूला मैथ्स में, तो फॉर्मूला का आंसर थोड़ी याद करने पड़ता है. सम्स कोई भी सम तो आप कर लेंगे. तो दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? मेटल whenever it with dilute acid it will produce salt and water. Always remember. तो देखो यहाँ पे मेटल से एग्जांपल दिए हम लोग सीमेंट में. देखिए मैग्नीशियम इज देयर, सॉलिड मैग्नीशियम रिबन, एंड HCl aqua डाइल्यूट था, वो डाले तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2 गैस इज लिबरेटेड. ये H2 गैस इज गेटिंग बर्निंग, है ना, कैंडल के बाद बर्न हो रहा था विद पॉप अप साउंड.
और व्हाई इट इज सॉल्ट, बिकॉज यहाँ पे Mg प्लस है और Cl माइनस है, इट इज इन एक्वा, एक्वा मतलब वाटर में डिसॉल्व है। तो दिस इज Mg। अब ये Mg जब वाटर में डाइसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Mg प्लस Cl माइनस। तो डेफिनेशन ऑफ द सॉल्ट क्या है कि वो सॉल्ट इज सब्सटेंस व्हिच डोंट हैव H प्लस एंड डोंट हैव OH माइनस आल्सो, है ना। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे दोनों नहीं है एंड दिस इज द आयनिक कंपाउंड, तो दिस इज सॉल्ट। तो सारे जो भी रिएक्शन कराएंगे आप दूसरे भी लिमिट लो। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम लिया मैंने, सोडियम ले लिया और HCl ले लिया, तो क्या होगा NaCl। NaCl is the salt and plus H2. H2 gas will be liberated. तो अदर आर द एग्जांपल आल्सो। इसके अलावा एल्युमिनियम प्लस HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म प्लस H2 गैस विल बी लिबरेटेड। तो दिस फॉर्मेट यू हैव टू मेमोराइज एंड आफ्टर दैट जो भी सम्स आएगा, मतलब जो भी इक्वेशन आएगा, यू कैन सॉल्व इट। और अभी से आगे डालेंगे तो 10th में इजी होगा। देखो 10th में नाम ही पढ़ रही है, HCl को क्या बोलेंगे, HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रीड बाय द नेम and practice as much as possible. यहाँ पे H भी सॉलिड है, A की मतलब एक्वा था, G मतलब गैस है। Now the second reaction we are saying reaction of acid with oxides of metal. Metal oxide. There is an experiment. Let's see the experiment. When acid react with oxide of metal, they form salt and water again. सॉल्ट एंड वाटर अगेन दे आर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल था, है ना, मेटल में बिकॉज सिर्फ मेटल हम लोग रखे तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और ऑक्साइड ऑफ मेटल रखे तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अगर मैं बेस भी रखूंगा तो बेस का भी फॉर्मूला यही था, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ये बन रहा है। तो तीनों चीज में ओके, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये सब में क्या हो रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये जो हमारा सॉल्ट एंड वाटर सब में आ रहे हैं। बट देयर इज सम कंडीशन कि वो जो मेटल बे होना चाहिए ना, उसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर, मैं कॉपर यहाँ पे रखूंगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मैं गोल्ड रखूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, है ना। ये फॉर्मेट इज देयर, फॉर्मूला इज देयर, बट देयर आर सब एक्सेप्शनल केसेस फॉर इट आल्सो, ना। तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं बताया कि अभी हम लोग उसमें अलग से चार्ट में बताऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, जो कि 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये अभी फॉर्मेट याद कर लो कि मैं क्या, कि जब भी एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड इज आल्सो बिहेविंग एज अ बेस, हां, इसका मतलब क्या हो, मेटल ऑक्साइड भी बिहेव ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बेस जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिड और बेस क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। यहां पे एक्सपेरिमेंट है कि वी आर टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में मैं क्या किया, रेड ऑक्साइड, व्हाट इज द रेड ऑक्साइड, दिस इज द आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इज रेड इन कलर। इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl डाल दिए। रेड ऑक्साइड इज नॉट मिक्सिंग विद द वाटर, यहाँ पे वाटर है, रेड ऑक्साइड ऊपर है, दे आर नॉट डिसॉल्विंग विद ईच अदर, और देन वी आर pouring HCl over here. तो व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन विल बी, यहाँ पे समटाइम इट विल टर्न इनटू येलो, रेड ऑक्साइड था वो येलो में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि क्या बना, हम लोग इक्वेशन में देखते हैं, रेड ऑक्साइड इज Fe2O3, Fe2O3 हाउ इट कम, फार्मूला आपने पढ़ा था, एक्सचेंज करते हैं Fe एंड O का क्या है, वैलेंसी 2 है, और आयरन का वैलेंसी 3 है, आयरन का वैलेंसी 2 होता है, 2 होता है, Fe3 भी होता है, 2 भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, इसका 3 इधर और इसका 2 इधर आ गया। होप यू रिमेंबर मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू डिराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज नोन एज रेड ऑक्साइड, और इसको
रियल नेम में क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो फेरस होता, अगर आयरन बैलेंस में 2 रहता तो उसको बोलते हैं फेरस, अगर मैंने 3 लिया तो इसको फेरिक बोलते हैं। तो दिस फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज ओवर हियर रेड ऑक्साइड, रेड कलर होता है वो, एंड दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर टू। तो जब मैंने HCl डाला तो ये क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, जो कि क्या है, रेड इन कलर है। HCl के साथ रिएक्शन के बाद करने के बाद क्या बन रहा है, AgCl3 बन रहा है, फेरिक क्लोराइड बन रहा है। तो केमिकल इक्वेशन देखते हैं इसका, फेरस ऑक्साइड सॉलिड है, HCl एक्वा क्या बना है, फेरस फेरिक क्लोराइड बना रहा है, और H2O क्या है, H2O लिक्विड आ रहा है। इसके अलावा और कुछ दूसरे एग्जांपल है, यस देयर आर मेनी एग्जांपल्स आर देयर। Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl, या दूसरा एसिड ले लेते हैं, देखो Na क्या बना, NaCl, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 1 है इसलिए यहाँ पे कुछ और नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, H2O हो गया, ये लिक्विड हो गया। दिस इज बैलेंस, नॉट इज बैलेंस नाउ। इसके अलावा क्या मैं दूसरा एसिड ले सकता हूं, यस वी कैन टेक द सेम थिंग विल बी देयर, सोडियम सल्फेट, दिस इज द सॉल्ट। सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर बनेगा, दिस इज लिक्विड। बैलेंस है या इट इज बैलेंस। तो और इसमें भी देखो मैंने क्या किया था, ये भी दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज आल्सो सॉल्ट, एंड दिस इज वाटर वाटर वाटर। तो फॉर्मेट इज सेम, व्हाट इज द फॉर्मेट केम, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज गिविंग, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। तो होप यू हैव गॉट दिस। You have to practice this equation. अब practice करेंगे तो इंशाल्लाह you will be expert soon. Reaction of base with oxide of non-metal. क्या है, बेस के साथ किसका रिएक्शन करने का, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल का। अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे ऑक्साइड ऑफ मेटल, नाउ इट इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ओके, नॉन मेटल है। सी सम रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड react with base, they will form salt and water again. Oxide of non-metal are like acidic in nature. They are जैसे oxide of metal होते हैं वो basic का, तो इसी तरह oxide of non-metal they are acidic in nature. तो जब when acid react with the base, what they form, salt and water. Same formula repeat हो रहा है यहाँ पे, just थोड़ा सा change हो रहे हैं। तो it's easy now for you to learn. Let's take some example. ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर अगेन। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बेस एंड सॉल्ट एंड वाटर इज कमिंग। ठीक है, अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब लिबरेट हो रहा है कहां से, इंडस्ट्री से, है ना, या कोई भी कोल फैक्ट्रीज हो रहा है, तो दे वेंट ऑफ इन द एटमॉस्फेयर एंड दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म व्हाट, एसिड। इसी चीज को ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं नेचर टर्म। कार्बन डाइऑक्साइड है, यू रिएक्ट विद वाटर, यू इट विल फॉर्म H2CO3, इट इज द एसिड, इट्स अ कार्बोनिक एसिड। सल्फेट H2 is water, it will form H2SO3, this is again acid, sulfurous acid it is. So they are forming again nitric acid is also same. So they are forming acid that is acidic in nature. When they react with water, when they are bringing with water, तो पानी के साथ अटैच हुआ तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और सिंस वी आर टेकिंग इन एक्वा, हम लोग क्या करेंगे, बेस को एक्वा में रख रहे हैं, मतलब इसमें
अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें ऑलरेडी वाटर है, तो जब इसको वाटर मिलेगा ये गैस को, तो ये एसिड जैसा बिहेव करेगा, और ये बेस ऑलरेडी है, तो एसिड और बेस क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 आया, और दिस इज CO3, ओके, दिस इज द कार्बोनेट आयन। एंड क्या बना रहा है, H2O, लिक्विड। See here. Then again carbon dioxide react with potassium hydroxide. It is giving potassium carbonate plus H2O. This is the salt. This is also salt. And now here sodium dioxide, sorry, sulfur dioxide plus sodium hydroxide. क्या बना है? Sodium sulfate and water. तो यहाँ पे देखो salt. The formula is the same. And you are just putting the example. See here, one activity is there, reaction of acid with carbonate and bicarbonate of the metal. Carbonate and bicarbonate में क्या होता है कि carbonate में CO3 आता है, bicarbonate में H add आता है उसमें. See what is the difference? This is the carbonate, Na2CO3. This is the carbonate. Sodium carbonate, and NaHCO3, this is bicarbonate. Clear? 5 minutes. This is bicarbonate. Bicarbonate का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 निकाला। यहाँ कार्बोनेट का वैलेंसी is 2 is there, that why we have added 2 in molecular formula. Clear? हाँ, bicarbonate का Na plus HCO3 minus कितना वैलेंसी है, 1 है, तो ये क्या बना, NaHCO3. This is bicarbonate. Just H is there, it become bicarbonate, and H is not there, it is carbonate. तो रिएक्शन देखते हैं आपके सिलेबस में, it is given over here, carbonate and bicarbonate. Why it is given, I will tell you. Okay, now carbonate का क्यों एग्जांपल दिया गया, many, okay, सल्फेट है, बाइसल्फेट भी है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्यों दिया हुआ है, just because there is some more information is there. Immediately add bend. Okay, this is the test tube experiment is there. We have this test tube and we have fitted rubber tube and a bend tube है और उसमें lime water is there. ये bend tube से जो भी गैस अगर evaporate हो रहा है या liberate हो रहा है, तो that gas will come over here in this lime water. अब जो भी रिएक्शन होगा यहाँ पे एसिड किसके साथ, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, तो क्या बन रहा है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, मिल्की होता है ना, व्हाइटिश इन कलर होता है, दैट्स व्हाई इट इज। तो इससे क्या प्रूफ होगा, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। चेकिंग for the question. Actually, I came to the summer is coming, so we have to wear masks. So I am taking them there. Bring the book here. Sir, take the book and let them go. They will come tomorrow. Just now, as I told you. Submit your The calculation for carbon dioxide. 1 to 3 minutes. Where is the mask? So बेटा we are doing कि गैस, this gas is produced on the reaction of acid with carbonate and bicarbonate salt of metal, है ना, ये गैस लिबरेट हो रहा है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ये गैस लिबरेट होता है, और ये गैस क्या करता है, हम लोग CO2 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, लाइम वाटर से रिएक्शन करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, टर्न हो जाता है, इसमें मिल्की हो जाता है। यहाँ पे लाइम वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है, मिल्की क्या होता है बताता हूँ, CaOH2, है ना, ये ऐड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये इसमें अंदर पानी में, तो क्या बना हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो ये जो है इसका कैल्शियम कार्बोनेट नाम इसका, ये मिल्की होता है, ये वाइट कलर होता है, इसकी वजह से ये टर्न कर देता है। तो ये लैबोरेटरी का केमिकल टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो कैसे चेक करेंगे, तो लाइम वाटर टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड किधर भी निकलता है वो टेस्ट करने के लिए यही यूज करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट, है ना। ये टर्म मिल्की। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन देख लेते हैं ना हम लोग, ये ऊपर का रिएक्शन देख लेते हैं, तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम Na2CO3 प्लस HCl, ये क्या बोला, रिएक्शन विद एसिड, कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है ना, तो क्या बन रहा है NaCl बनेगा, NaCl डिस्प्लेस हो रहा है। ये सोडियम क्या करता है, सोडियम को ज्यादा एफिनिटी है, ज्यादा चाहते किसका, क्लोरीन का, कार्बोनेट से, है ना। तो आपके क्या बनता है CO2 और H2O गैस लिबरेट हो रहा है, H2O सॉरी वाटर, और ये CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये अपना एक्वा हो गया, ये हमारा गैस हो गया, ये एरो मतलब गैस हो गया, और ये हमारा लिक्विड हो गया। दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम का, ले लो एसिड H2SO4 ले लो, तो क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर। तो ये हमारा गैस है, ये हमारा एक्वा है, एक्वा मतलब पानी में है, मतलब पानी डिसॉल्व है, और ये भी ये हमारा एक्वा था, ये सॉलिड। तो क्या निकल रहा है हमें, पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। मतलब जब भी एक एसिड, दिस इज द एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट ऑफ मेटल, दिस इज द कार्बोनेट ऑफ मेटल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज द मेटल, दिस इज द कार्बोनेट, पोटेशियम इज द मेटल, दिस इज द कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, है ना। तो क्या दे रहे, ये वो सॉल्ट दे रहे, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज आल्सो सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी, वाटर वाटर इधर। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हो रहा था, ये हमें ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, इसको मिल्की कर रहा है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया मैंने, है ना, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, तो जिसकी वजह से ये मिल्की हो जा रहा है। क्लियर। आपके बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं इसके, ये पेज नंबर 68 का बाइकार्बोनेट का भी, बाइकार्बोनेट का मैंने नहीं दिया ना, बाइकार्बोनेट का भी कर सकते हैं आप। आपको देखो टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जब सोडियम बाइकार्बोनेट है, चलो एक करके लिखते हैं, NaHCO3 प्लस नाइट्रिक एसिड लेता हूं मैं, HNO3, इट इज द नाइट्रिक एसिड। तो क्या बना, NaNO3, और क्या बना मुझे CO3 मिलेगा, और क्या मिलेगा मुझे H2O। अब मुझे बैलेंस करने का रहेगा, बैलेंस है ये, यस बैलेंस है। तो बाइकार्बोनेट, दिस इज द बाइकार्बोनेट, दिस इज द कार्बोनेट, दिस इज बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, वही चीज मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज के बाद आपकी बुक में बता रहे, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना बेटा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। मैथ्स में किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, उसी तरह इसमें भी। ये देखो रिएक्शन बता रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट रिएक्शन विद लाइम वाटर। अब देखो सॉल्ट के बारे में दिया, सॉल्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट तो मैंने बताया था न्यूट्रल होता है, क्या होता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है।
एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट के थोड़ा और टाइप भी होती है, थोड़ा एसिडिक और बेसिक सॉल्ट होते हैं, है ना। जनरली सॉल्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन देयर आर सम एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। ये एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट है क्या? बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, बहुत इजी है बेटा, आप सीख लेंगे इंशाल्लाह भी। अभी देखो एक्टिविटीज के लिए सोडियम क्लोराइड दिए, अमोनियम क्लोराइड दिए और सोडियम बाइकार्बोनेट दिए, तीन दिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये तीनों में क्या बोलेगा? वो पीएच पेपर हम लोग पढ़े थे ना, पीएच पेपर यूनिवर्सल वाला पढ़े थे, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है उसका हम लोग ले लिए, है ना, पीएच पेपर ले लिए। अब वो एक पीएच पेपर इसमें डाले, एक पीएच पेपर इसमें डाले, एक पीएच पेपर इसमें डाले और उसको कंपेयर किए यूनिवर्सल इंडिकेटर के चार्ट के साथ, उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। याद है यूनिवर्सल इंडिकेटर, याद होगा आप लोग को? तो उसमें चार्ट चेक करने के लिए गए, तो वो उसमें सोडियम क्लोराइड क्या दिखाएगा? दिखाया वो ग्रीन है, इसमें कलर ग्रीन दिखाया। और इसमें क्या दिखाया? इसमें पीएच ग्रीन से कम है, मतलब 6 है इसका पीएच बता रहा है ना, लाइट येलो लाइट ऐसा दिखा रहा था। हाँ, इसमें क्या दिखा रहा था? इसमें ब्लू दिखा रहा था, मतलब 7 से ज्यादा पीएच, है ना। ब्लू किसका होता है? जो 7 से ज्यादा होता है ना पीएच उसका होता है ना, तो ब्लू कलर दिखा रहा था। तो ये अलग अलग क्यों दिखा रहा है? तीनों सॉल्ट है, ये तीनों सॉल्ट है, क्योंकि इसमें H+ नहीं है और H- भी नहीं है, ये तीनों सॉल्ट है। ये ग्रीन दिखा रहा है मतलब न्यूट्रल है, वाटर जैसे न्यूट्रल होता है ग्रीन है। ये दिखा रहा है हमें इसका pH लेस देन 7 दिखा रहा है, मतलब ये एसिडिक है, और इसका pH मोर देन 7 दिखा रहा है, मतलब ये बेसिक है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? ये स्टूडेंट में बताया हुआ है, ये ऐसा हो रहा था। तो हमें क्या पता चला कि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? एसिडिक बेसिक भी होता है ना, एसिड रिएक्ट करता है, बेस से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। अब ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन आगे न्यूट्रल हमेशा एकदम 100% न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब एसिड है तो 95% एसिडिटी क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेस है तो 95% इसका बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 100% सब में नहीं होगा, सारे सॉल्ट में न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, 100% ने बोला, है ना। ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड मिला जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता है कितना? 90% 95%, कुछ एसिड में 100%, है ना, कुछ बेस में 100%, लेकिन कुछ बेस में 95% 90% ऐसा होता है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन सब में नहीं होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो वो देखते हैं किसमें होता है किसमें नहीं होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। हाँ, अभी देखो ये 3 एग्जांपल दिया हुआ। न्यूट्रल सॉल्ट, देखो न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH 7 होगा, जैसे क्या था सोडियम क्लोराइड, वो कैसे बनेगा? भाई जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट होंगे, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, उसका pH 7 देगा। एग्जांपल है, एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल। हाँ, इसका pH क्या रहेगा? सॉल्ट का 7 देगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaOH। NaOH का मैंने बताया था pH क्या रहता है? 14 क्या रहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 0 किसका होता है? HCl का। HCl का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या बनाया? NaCl प्लस H2O, है ना। तो ये जो NaCl है ना, ये NaCl का ये न्यूट्रल है, तो इसका pH क्या रहेगा? 7 रहेगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट, कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरे वाले एग्जांपल NaCl है, क्या बनाने के? स्ट्रॉन्ग एसिड ना, एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ? ये कब होता है? एसिड क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है? वीक है। बेस वीक है, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जांपल HCl है, ये स्ट्रॉन्ग है, NH3OH ले लिया। अमोनिया मैंने बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक होता है ना। तो ये क्या हुआ? NH3Cl सॉल्ट बना, लेकिन ये सॉल्ट किससे बना था? स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का।
तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये क्या करता है, अपना कुछ प्रॉपर्टी ना उस पे हावी हो जाता है। क्या होता है, इस पे हावी हो जाता है, NH3 के पे हावी हो जाता है। मतलब NH3 ये सॉल्ट तो बन गया, न्यूट्रल बन गया, लेकिन इसका एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत क्या होता है, साथ में शो करता है, ये है ना, थोड़ा बहुत साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी साथ में शो करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग था और ये वीक था, ये बेस वीक था, ये बहुत स्ट्रांग एसिड था, तो इसका क्या है, ये प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा ओवर क्या होता है, ओवर हो जाता है, के ऊपर हावी हो जाता है। ओके, है ना, और ये हमारा वाटर है। होप यू गॉट दिस, समझ में आया होगा। अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग उसका, ए बेसिक सॉल्ट का। CF तो बताया मैंने पीएच इसका कितना रहेगा, लेस देन 7 रहेगा, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट है। अभी देखिए बेसिक सॉल्ट इसको बोलेंगे जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसमें वीक एसिड, एसिड यहाँ पे वीक है और बेस क्या बहुत ही स्ट्रांग है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो उसका पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7 जाएगा। एग्जांपल आप हेल्प कर सकते हैं मुझे। वीक एसिड क्या है, H2CO3, ये कार्बनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। स्ट्रांग बेस NH तो बहुत बात की ना हम लोग, KOH करते हैं, क्या बना, K2CO3 प्लस H2O, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ये जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट किससे बना, ये सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो एसिड है वो कैसा है, एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये अपना प्रॉपर्टी क्या करता है इसके ऊपर, है ना, थोप देता है ना। तो न्यूट्रल तो हुए लेकिन क्या हुआ कि भाई मेरा प्रॉपर्टी रहेगा ही, मतलब ये गुंडा बड़ा गुंडा है, ये गुंडा है, ये भी वाला भी गुंडा है ना, साथ में एग्रीमेंट कर, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि मैं गुंडा हूं तो मैं हर बात को सुन, है ना, मेरा मतलब गुंडा करके वो शो करता है, मतलब कि अपना बेसिक प्रॉपर्टी क्या करता है, थोप के रखता है इसमें, क्योंकि ये वीक है ना, ये वीक है। आपके दोस्त हो ना, या आपके देखो आपका दोस्त को थोड़ा हैवी हट्टा बट्टा एकदम है ना, तो क्या करता है आपके ऊपर हमेशा हावी रहता है, ये कर वो कर, मेरे दोस्त है तो बात सुनना दोनों बराबर पर, तो नहीं करते बोले भाई मैं हट्टा कटो हर बात मेरा मान, ऐसा होता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक था इसका, ये स्लाइड का, और लास्ट में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखो वही दिया हुआ, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट आर द सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ना सल्फेट है, इससे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, क्लोराइड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नाइट्रेट है नाइट्रिक एसिड से। तो ये सारे एसिड का नाम जो बताया मैंने वो दैट आर स्ट्रॉन्ग एसिड ना। अब ये तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, दोनों बराबर बराबर, तो न्यूट्रल हो गया। ये भी पोटेशियम में बहुत रिएक्टिव होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से बना, तो ये भी बराबर बराबर, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये बेचारा वीक है ना, तो ये किस पे, नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक एसिड पे हावी रहेगा, तो ये क्या होगा, एसिडिक रहेगा। ओके, एसिडिक सॉल्ट है। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और वीक एसिड है ना, ये कार्बनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रांग है। सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड वीक है, और सोडियम क्या है, एकदम हाई गुंडा है एकदम। तो ये अपने प्रॉपर्टीज पे है ना ओवरकम कर देगा। अभी देखो जो मैंने पढ़ाया था डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट, ये मैंने पढ़ा चुका आपको अभी, है ना। ये देखो वापस इस स्लाइड में रिपीट हो रहा है, क्या कार्बोनेट मेटल है ना, कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी है, यहाँ पे वाटर मेंशन नहीं किए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आता है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट है, इससे रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और कार्बोनेट बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। बाइकार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये सब सॉल्ट बन रहे हैं। क्लियर? अच्छा यहाँ पे बता सकते हैं क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, एसिडिक सॉल्ट कौन है, ये क्या है, न्यूट्रल है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ था, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है दोनों, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है दोनों। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है ना, ये सॉल्ट ये वीक है, तो ये हावी रहेगा इस पे, तो ये बेसिक सॉल्ट है। होप दिस क्लियर टू यू ऑल।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।